I am Simran. Welcome to my channel. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ यूनियन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया सी हुण आपां करांगे इंटरसेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टेटमेंट की अपने को फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव इहदे विच आपां नूं की क्या है आपां इंटरसेक्शन फाइंड करना जेहड़े आपां नूं गिवन सेट दिते ने ऑफ क्वेश्चन 1 अबव द की मीनिंग आ जदों आपां क्वेश्चन 1 कीता सी उदों भी आपां नूं आई सारी स्टेटमेंट्स दित्तियां होईयां सी बट उस कंडीशन च आपां उन्हां दा यूनियन फाइंड कीता सी बट नाउ आपां इन्हां दा इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपां प्रीवियस लैक्चर दे विच इहदी इंट्रोडक्शन लैक्चर दे विच पढ़िया है कि इंट्रोडक्शन लैक्चर दे विच आपां पढ़िया है कि अपने कोल इंटरसेक्शन की हुंदा है मैं तुहानूं दोबारा रिवाइज करवा दिंदी हां अपने कोल इंटरसेक्शन की हुंदा है लेट डेफिनेशन देखो इहदी की हुंदी है लेट ए एंड बी आर टू सेट ए ते बी अपने कोल कोई भी दो सेट हुंदे ने intersection of A and B contain all the common elements main thing is common elements ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸੈਟ x ਐਂਡ ਸੈਟ y ਜੋ ਸੈਟ x ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 1 3 5 ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਟ y ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਲੇ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 ਤਾਂ 1 ਸੇਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ सो 1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ 5 ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 1 ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ 3 ਇਹ ਸੈੱਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ इंटरसेक्शन ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਓਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿੱਤਾ ਉਵੇਂ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿੱਤਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਟ A ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਟ B ਹੈ जो सेट A दे एलिमेंट्स किहड़े ने A E I O U मीन सारे वोवल्स एंड B दे एलिमेंट्स किहड़े ने A B C हुण इन्हां बिटवीन आपां की फाइंड करना है इंटरसेक्शन सो A इंटरसेक्शन B की होगा देखो हुण इन्हां विच कॉमन की है देखो इन्हां विच की कॉमन है A सेट विच भी प्रेजेंट एंड A सेट विच भी प्रेजेंट है सो इत्थे कल्ला की होगा कॉमन A सो ये अपने कोल क्या आ गया इंटरसेक्शन जो कॉमन है दोनों सेट दे विच ओही लिखना हुंदा आपां हुण आपां करदे हां नेक्स्ट इहदा पार्ट नेक्स्ट है बच्चे अपने कोल थर्ड पार्ट देखो इहदे विच भी आपां नूं दो सेट गिवन ने ये दोवें जो सेट बिल्डर फॉर्म दे विच गिवन ने सो पिछले लेक्चर दे विच मैं तुहानूं दस्सिआ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਾ ਸੈਟ ਆਫ x such that x is a natural number x ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 3 ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆ 3 ਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਾਊਗਾ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ 3 ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ 4 ਵੀ 5 ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 3 ਕੀ ਹੈ
मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 3 के टेबल ते जाता है, दैन 6 9 12 ये सारे नैचुरल नंबर भी ने। एंड बी सैट दे आपां नूं की दिता होया है, द सैट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नैचुरल नंबर। इत्थे भी एक्स अपने कोल कोई नैचुरल नंबर है एंड लैस दैन 6 6 तो थल्ले वाले नैचुरल नंबर किहड़े होणगे, 6 तो थल्ले वाले नैचुरल नंबर किहड़े होणगे आ 5 1 2 3 4 5। हुण इन्हां दा आपां इंटरसेक्शन फाइंड करना, ए इंटरसेक्शन बी किवें करांगे। हुण जो थर्ड है देखो, जो अपने कोल इन्हां सारे जो कॉमन की है, जो 3 है वो दोनों साइड के विच कॉमन है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि 6 भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, 3 दोनों सेट दे विच आ रहा है, दोनों दे विच कॉमन है। सो ये अपने कोल की आ गया इंटरसेक्शन का आंसर कि दोनों सेट दे विच कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट अपने कोल स्टेटमेंट है ए सेट, अपने कोल की स्टेटमेंट है द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स कोई भी एक नेचुरल नंबर है। एंड कंडीशन देखो बच्चे, कंडीशन की दित्ती हुंदी है आपां नूं जो x की वैल्यू आ वो 1 तो ता ग्रेटर है, मींस 2 तो स्टार्ट होगी क्योंकि 1 तो वड्डी है बट 6 से इक्वल भी है तो 6 तो छोटी भी है, मींस 3 4 5 एंड 6। हुण आपां 6 भी लवांगे क्योंकि इत्थे इक्वल टू दा सिंबल भी आया होया, अपने इक्वल टू दा सिंबल भी आया है। जदों आपां इंटरवल पढ़े सी आपां देखिया सी ना कि क्यों सिंबल लगदा हुंदा, पिछले लेक्चर दे तुहानूं दस्सिया होया, तुसीं देख सकदे हो। 6 ए सेट दे विच प्रेजेंट होगा, मींस 1 तो वड्डे ने बट 6 से इक्वल ने ते 6 तो छोटी x दी वैल्यू। एंड बी सेट दे एलिमेंट्स किहड़े होणगे, जो x दी वैल्यू आ वो 6 तो ज़्यादा है बट 10 तो घट है, 6 तो ज़्यादा 10 तो घट किहड़े नंबर होणगे 7 8 एंड 9 आ वाले नंबर होणगे। और 6 तो मतलब x की वैल्यू 6 तो ज़्यादा एंड 10 तो घट है, सो आ नंबर आ गए सी। हुण मैं तुहानूं दस्सी इन्हां दा किवें कढना आपां इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इन्हां दे विच कॉमन एलीमेंट किहड़ा देखो, 2 ए सेट दे विच है 3 है 4 है 5 है 6 है, कोई एलीमेंट नहीं है। जदों कोई एलीमेंट नहीं हुंदा मीनस वो सेट की हुंदा खाली, खाली सेट नूं आपां काहदे नाल डिनोट करदे सी 5 नाल, मीनस एम्प्टी। इत्थे भी आपां नूं 2 सेट गिवन ने, एक सेट दे एलीमेंट किहड़े ने बच्चे अपने कोल 1 2 3 एंड बी सेट दे एलीमेंट किहड़े ने 5, मीनस जिहड़ा बी सेट है वो अपने कोल एम्प्टी सेट होगा, मीनस वो सेट दे विच कोई भी एलीमेंट नहीं है। सो इत्थे आपां की करना है इंटरसेक्शन फाइंड करना। इंटरसेक्शन च आपां कॉमन एलीमेंट लैने सी बट इत्थे कोई कॉमन एलीमेंट ही नहीं है, इहदे विच 5 प्रेजेंट है एंड इहदे विच 1 2 3 प्रेजेंट है, कोई कॉमन एलीमेंट ही नहीं है। सो आपां इत्थे की लिखांगे 5। ए इंटरसेक्शन आ लाइन तुसी लिख भी सकते हो ते नहीं भी, जे तुहानूं नहीं मतलब लिखनी तो कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट, मींस कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है। हुण अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हुण आपां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चे अपने कोल क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकी स्टेटमेंट देखो, आपां नूं 4 सेट गिवन ने। सेट ए दे एलिमेंट किहड़े ने अपने को 3 5 7 9 और 11 एंड अपने को सेट बी दे एलिमेंट्स किहड़े ने 7 9 11 और 13 एंड नेक्स्ट सी सेट दे एलिमेंट किहड़े गिवन ने 11 13 और 15 एंड डी सेट दे एलिमेंट ने अपने को 15 और 17। आपां जिहड़े थल्ले पार्ट दिते ये सॉल्व करने ने, अपने को सेट तां गिवन ने। नेक्स्ट आपां पहला पार्ट करन लगे, इहदे विच आपां नूं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करन नूं किहा। देखो ए सेट की किहड़े एलिमेंट्स ने अपने को 3 5 7 9 और 11 एंड बी सेट के एलिमेंट्स किहड़े ने अपने को 7 9 11 और 13। तुसीं एलिमेंट लिख भी सकते हो जिवें इत्थे ए सेट के एलिमेंट्स ने अपने को 3 5 7 9 और 11 एंड बी सेट के एलिमेंट्स ने अपने को 7 9 11 और 13 ए। हुण आपां फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तुसीं दसो मैनूं इन्हां विचों कॉमन की है, जो कॉमन एलीमेंट्स ने आपां सिर्फ ओही लैने हुंदे ने। इन्हां दोवां दे विच तुसीं दसो कॉमन की है। देखो 3 5 9 11 और
7 दोवां सैट दे विच कॉमन है, सो 7। 9 दोवां सैट दे विच कॉमन है, सो इत्थे 9 आऊगा। एंड 11 दोवां सैट दे विच कॉमन है ते 11 आ गया। देखो होर कोई एलीमेंट है 5 भी नहीं कॉमन हैगा अपने कोल, 3 भी नहीं कॉमन, सो 3 एलीमेंट ही कॉमन ने। जो कॉमन एलीमेंट्स नहीं आपां ओही इंटरसैक्शन दे विच लिखने हुंदे ने। सो ये फर्स्ट पार्ट अपना हो गया। हुण आपां देखदे हां सैकेंड पार्ट। आपां नूं बी इंटरसैक्शन सी फाइंड करना। हां बी सैट दे किहड़े एलीमेंट्स ने 7 9 11 और 13 एंड सी सेट के किहड़े एलिमेंट्स ने 11 13 और 15। आपां बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। देखो इन्हां च कॉमन की है, इन्हां दोवां दे विच कॉमन एलिमेंट्स देखने ने। 11 जो दोवां सेट दे विच कॉमन है, सो इत्थे 11 आ जाऊगा। एंड सेकंड 13 दोवां सेट दे विच कॉमन है, सो 13 आ जाऊगा। 7 9 15 दोवां सेट दे विच कॉमन नहीं आ रही, सो आपां इन्हां नूं नहीं लिखांगे। ओनली जिहड़े कॉमन एलीमेंट्स हुंदे ने आपां सिर्फ ओही लिखने हुंदे ने। ये आपां इंट्रोडक्शन लैक्चर दे विच चंगी तरह कीता होया है। इंट्रोडक्शन तुसीं ओह देखियो वीडियो जाके चैनल ते अपने है। ते एंड नैक्सट वारी आपां देखो ये जदों आपां नूं आह वाली कंडीशन दित्ती हुंदी है ते इन सेट दे बिटवीन आपां इंटरसैक्शन फाइंड करना है। फिर आपां इनदियां प्रॉपर्टीज कीतियां सी। सो आपां इहनूं किवें लिख सकदे हां, देखो थोड़ा मैं ऊपर करके करवा देंगे तुम। देखो आप नहीं हो गया, रब कर देंगे। ए इंटरसेक्शन सी आइए ना अपने को स्टेटमेंट देखो, सी इंटरसेक्शन डी अपनी को स्टेटमेंट की है। जो अपनी को कोई एवें दी कंडीशन आती है आप एवें भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट इंटरसेक्शन डी। आप एवें भी लिख सकते हैं ना, ये आप बाद करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो इन्हों आप एवें भी लिख सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी दे करके। फिर आप फर्स्ट स्टेप अपना की है, आप ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ये किवें फाइंड करांगे, इहदे लई आपां नूं की ए ते सी दे एलीमेंट्स चाहिए होणगे। अपने को ए दे एलीमेंट्स किहड़े ने 3 5 7 9 और 11 एंड बी सेट दे एलीमेंट्स किहड़े, सॉरी सी लिखता ना, सी सेट दे एलीमेंट्स किहड़े ने 11 13 और 15। आपां इत्थे की फाइंड करना है, इन्हां दोवां दा इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन इन्हां दोवां दे विच कॉमन एलीमेंट किहड़ा है, ओनली 11 कॉमन है दोवां दे विच, क्योंकि 11 इस सेट च भी प्रेजेंट है, इस भी। बाकी होर कोई एलीमेंट कॉमन नहीं है, मिलता जुलता नहीं है ना, 11 कॉमन है। सो आपां हुण की फाइंड करना सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। किवें करांगे, 11 इंटरसेक्शन डी दे एलीमेंट्स अपने कोल किहड़े ने 15 और 17। यस 15 और 17 इन्हां दोवां दे विच कुछ कॉमन नहीं है। जदों कुछ कॉमन नहीं हुंदा इहदा मतलब वो एम्प्टी सेट हुंदा, खाली सेट। आपां इहनूं एवें भी लिख सकते हैं, खाली ब्रैकेट पा के कि विच कोई भी एलीमेंट ना लिख के भी लिख सकते हैं आपां। ये आपां की करना हुंदा, जदों एवें दी कंडीशन गिवन हुंदी है, आप प्रॉपर्टी लानी है। फर्स्ट आपां ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करनी है, देन आपां डी भी नाल देखना है। फिर इन्हां दोवां दे विच जो कॉमन है वो अपने कोल आ जाऊगा, बट इत्थे कुछ कॉमन नहीं सी तां करके आपां इत्थे एम्प्टी सेट बनिया सी। नैक्सट अपने कोल की आ, देखो ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना आपां, मतलब आपां नूं ए दे एलीमेंट ते सी दे एलीमेंट चाहिए ने। ए दे एलीमेंट अपने कोल किहड़े ने 3 5 7 9 और 11 एंड वैसे मैं इत्थे भी करवाता, तुसीं इत्थों भी कर सकते हो। चलो आप इत्थे देख लेंगे हैं। ए इंटरसेक्शन सी किवें फाइंड कीता सी, ए दे एलीमेंट लिते सी दे एलीमेंट लिते सी। इन्हां दोवां दे विच कॉमन की सी 11 सी। ये आपां क्वेश्चन आई दी भी कर लिया, दोवां दे विच की सी कॉमन 11 सी। सो अपने कोल ए इंटरसेक्शन सी की आ गया सी 11। हुण आपां देखदे हां नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट पार्ट च आपां नूं की फाइंड करन लई किहा, बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करन लई किहा है। पहला आपां की वेखांगे, दोवां दे एलीमेंट्स। बी दे एलीमेंट्स किहड़े ने अपने कोल 7 9 11 और 13 एंड बच्चे डी दे एलीमेंट्स किहड़े ने 15 और 17। ठीक है, आपां की करना, बी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना।
इन्हां दोवां दे विच कॉमन की है देखो इन्हां दोवां दे बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रही, ते अपने कोल की होगा एम्प्टी सेट। B intersection D is an empty set means खाली set, the set which does not contain any element, ਐਵੇਂ ਦਾ set जिंदे विच कोई भी element present नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ नेक्स्ट देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ A intersection B intersection C फाइंड करना। इस कंडीशन च पहले ਆਪਾਂ B intersection C फाइंड करांगे। देखो अपने कोल की कॉमन आ रहे सीधा इत्थों ही देख लो, अपने कोल 11 और 13 कॉमन आ रहे हैं क्योंकि ये एलीमेंट ही दोवां दे विच प्रेजेंट ने, और कोई एलीमेंट सेम नहीं आ रहा। दैन आपां A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। 11 13 और इन्हां दे विच की कॉमन आ रहा है, ओनली 11 कॉमन आ रहा है। सो अपने को A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की आ गया 11 आ गया। हुण आपां करदे हैं नेक्स्ट। हुण नेक्स्ट पार्ट दे विच बच्चे आपां नूं की क्या है, हाँ एक्चुअली ना मतलब मेरे साइन थोड़ा जिहा आप मैथ नालों डिफरेंट ले लिया सी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया चलो अपना रिवीजन दे विच, बट इहदे यूनियन दिता होया है, इत्थे आपां यूनियन लेना है। दोबारा करवाने हैं, देखो इत्थे आपां यूनियन लेना है। सो आपां पहला स्टेप की हुंदा, जो ब्रैकेट दे विच चीज हुंदी है आपां ओनू फाइंड करना हुंदा है। सो आपां की करांगे, फर्स्ट स्टेप आपां B यूनियन C फाइंड कर लांगे कि अपने कोल B यूनियन C दे विच की आ रहा है, B ते C दे एलीमेंट। हाँ जी, एक यूनियन भी चलो अपना इस लैक्चर में थोड़ा रिवाइज हो चुका। यूनियन दे विच की करना हुंदा है, आपां सारे एलीमेंट्स लेने हुंदे है, बट जिहड़ा कॉमन एलीमेंट है सिर्फ उहनू एक बारी लेना हुंदा। देखो B यूनियन C दे विच आपां सारे एलीमेंट लेने ने 7 9 11 13, A दे एलीमेंट्स ले ले, दैन आपां C दे एलीमेंट लेने ने। हुण 11 13 दोवां दे विच कॉमन है, सो उहनू एक बार लेना, दैन 15 जिहड़ा कॉमन एलीमेंट है सिर्फ उहनू एक बार ही लेना हुंदा आपां। नाउ आपां करदे हां A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ए किवें फाइंड करांगे आपां, देखो हुण A दे एलीमेंट अपने कोल किहड़े ने 3 5 7 9 और 11, एंड आपां की करना नेक्स्ट आपां A दे एलीमेंट ने, दैन इंटरसेक्शन B यूनियन C अपने कोल की आया सी 7 9 11 13 और 15। क्लियर? आपां फर्स्ट स्टेप च की करना हुंदा, यूनियन फाइंड करना हुंदा। यूनियन च आपां सारे एलीमेंट लेने आ, बट जिहड़ा एलीमेंट रिपीट हो रहा है कॉमन है उहनू सिर्फ एक बार लेना। ते इंटरसेक्शन दे केस दे विच आपां की करना है, कल्ला कॉमन एलीमेंट लेना है, ते जिहड़ा कॉमन एलीमेंट रिपीट हो रहा है उहनू सिर्फ एक बार ही लेना। उवें आ फाइंड हुण इन्हां दे विच देखो दोवां च कॉमन की आ रहा है, इंटरसेक्शन B यूनियन C। इन्हां दोवां दे विच कॉमन की आ रहा है 3 5 7 9 और 11, 7 9 11 13 15। इन्हां दे विच कॉमन की आ रहा है 11 दोवां दे विच कॉमन है, 9 दोवां दे विच कॉमन है। सो होर कोई एलीमेंट कॉमन आ रहा है 7 9 और 11, आ तीन एलीमेंट दोवां दे विच कॉमन आ रहे ने। सो ये अपनी कोल की हो गया इंटरसेक्शन का आंसर हो गया कि दोवां दे विच अपने कोल 7 9 और 11 कॉमन आ रहे ने। एक बार मैं होर रिपीट कर दी तुहानू, यूनियन दे विच की करना हुंदा, यूनियन च आपां सारे एलीमेंट्स लेने हुंदे ने, ते जिहड़ा एलीमेंट रिपीट हो रहा दोवां दे विच कॉमन है उहनू सिर्फ एक बार लेना हुंदा। एंड इंटरसेक्शन दे केस च बच्चे आपां की करना हुंदा, आपां कल्ले कॉमन एलीमेंट लेने ने, ਉਹ ਵੀ जो एलीमेंट कॉमन है उन्होंने सिर्फ एक बार लेना। क्लियर? हुण नेक्स्ट आपां आह वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी को स्टेटमेंट दी हुई है, तो सीधा करते हैं। अपनी को केड़ा स्टेटमेंट है देखो, A इंटरसेक्शन D फाइंड करना है आपां। इहदे लई आपां एलीमेंट देखो, दोवां लई आपां नूं एलीमेंट किहड़े चाहिए ने A एंड D। A दे एलीमेंट्स अपनी को किहड़े ने 3 5 7 9 और 11, एंड D दे एलीमेंट्स किहड़े ने 15 और 17। इन्हां दे विच कॉमन देखना आपां A इंटरसेक्शन D फाइंड करना। इन्हां दे विच कॉमन की है, इन्हां दे विच कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये की होगा अपने को एम्प्टी सेट होगा, मींस खाली सेट। की लाइन लिखनी है A इंटरसेक्शन D इज एन एम्प्टी सेट, खाली सेट है।
क्लियर। हुण आपां करदे हां क्वेश्चन नंबर 6 का नैक्सट पार्ट। देखो बच्चे अपने को नैक्सट पार्ट च आपां नूं की कहंदे ने ए इंटरसैक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना। उस स्पेस कट सी वाइट बोर्ड ते सो मैं एलिमेंट ने इस तरीके नाल लिख लिए हुए ने। आपां पहला स्टेप आपां नूं की आपां बी यूनियन डी फाइंड करना है ना। स्टेप 1 बी यूनियन डी फाइंड करना। सब बी ते डी दे आपां एलिमेंट्स लिख भी लेने, चलो लिख ही लेने आ, तुहानूं पता लग जी एग्जाम च आपां किवें इहनूं करना। 7 9 11 और 13 एंड डी दे एलिमेंट्स अपने कोल किहड़े ने 15 और 17। इत्थे आ लिख लो। पहला स्टेप की सी बी यूनियन डी फाइंड करना है ना। बी यूनियन डी फाइंड करना मींस आप सारे ही एलिमेंट लिखने हैं। सो इन्हां च कुछ कॉमन तो नहीं है ना, इन्हां च कुछ कॉमन नहीं है। सो आप इनू एवें ही एज इट इज सारे एलिमेंट्स जाके लिख देंगे। एंड देन आप की करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी फाइंड करना है ना। देखो आही फाइंड करना है ना आपा। फिर आप की करांगे ए सेट दे एलिमेंट्स किहड़े ने 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी अपने कोल किहड़ा आया, बी यूनियन डी किहड़ा है अपने कोल 7 9 11 13 15 एंड 17 अपने को एलिमेंट्स आई सी। हुण आपां इंटरसेक्शन फाइंड करना मींस देखना दोवां दे विच कॉमन की है, दोवां दे विच कॉमन की आ रहा है। सिर्फ वही एलिमेंट लिखने ने। 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। सो आपां आही एलिमेंट जाके इत्थे लिख दांगे 7 9 और 11। आ तीनों एलिमेंट सी जिहड़े अपने कोल कॉमन आ रहे सी। देखो बच्चे आपां करना की हुंदा है बी ते डी अपने कोल बी यूनियन डी फाइंड करना सी मींस आपां सारे एलिमेंट लिखने हुंदे ने। जो कॉमन एलिमेंट्स हुंदे ने उन्हां नूं सिर्फ एक बार लिखना हुंदा। फिर आपां की करना सी आ पूरी टर्म कढनी हुंदी है ना। देखो आ ए दे एलिमेंट ने देन इंटरसेक्शन देन जेड़ा बी यूनियन डी आया सी उनदे एलिमेंट्स। हुण आपां इन्हां दे बिटवीन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो आपां इन्हां दोवां दे विचकार देखने कॉमन एलिमेंट्स किहड़े ने। जो दोवां दे बिटवीन कॉमन एलिमेंट्स ने वो अपने को इत्थे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट। हुण आपां देखदे हां आ वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने को केड़ी ने आपां की फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपां आह देखना फर्स्ट स्टेप आपां की करांगे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करांगे। इंटरसेक्शन दे विच दोवां दे कॉमन एलिमेंट्स लिखने ने। सो इन्हां दे विच कॉमन की है 7 9 और 11। सो इथे की आ जाएगा अपने को 7 9 और 11 क्योंकि 7 9 और 11 ये दोनों सेट दे विच सिर्फ आही एलिमेंट कॉमन ने। सो 7 9 और 11 आ गया। देन आपको की करना है बी यूनियन सी फाइंड करना मींस सारे ही एलिमेंट लिखने हैं क्योंकि कोई एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उन्हें सिर्फ एक बार लिखना है। 7 9 11 13 और 15 11 और 13 रिपीट हो रही थी। सो मैंने एक बार लिख लिया। ठीक है हुण आपां पूरा फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हुण ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी अपने कोल की आ गया सी 7 9 और 11। देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अपने कोल की आया सी 7 9 11 13 और 15। हुण आपां पूरा दोवां दे विच इंटरसेक्शन फाइंड करना कॉमन फाइंड करना है। देखो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हुण दोवां दे विच इंटरसेक्शन फाइंड करना दोवां दे बिटवीन किहड़े एलिमेंट्स कॉमन आ रहे ने अपने कोल आपां ओह एलिमेंट्स लिखने ने 7 9 और 11। दोवां दे बिटवीन सिर्फ आही एलिमेंट्स अपने कोल कॉमन आ रहे हैं। नेक्स्ट आप वाला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
A इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन B यूनियन C फाइंड करना। हुन फर्स्ट स्टेप च आपां की फाइंड करना, आह वाली टर्म A इंटरसेक्शन D मीनस A ते D दे एलीमेंट लैने ने। इन्हां दोवां चों कॉमन किहड़ा एलीमेंट है आपां वो देखना है। A ते D विचों किहड़ा एलीमेंट कॉमन है, इहदे विच ओह देखदे आं आपां। A सॉरी आपां स्टेटमेंट रॉन्ग है थोड़ी जी, इत्थे यूनियन आ A यूनियन D इंटरसेक्शन B मीनस इत्थे यूनियन आऊगा। देखो टाइम मिल लगे, थोड़ा स्टेटमेंट रॉन्ग है। A यूनियन दे विच आपां सारे एलीमेंट लिखने हुंदे ने। हुण दोवां दे विच कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो आपां सारे एलीमेंट्स एज इट इज लिखांगे। 3 5 7 9 11 15 और 17 अपनी को ला आ गया है ना। आपां A यूनियन D फाइंड कर लिया। देखो मीन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपां की करना है, B यूनियन C फाइंड करना। B यूनियन C फाइंड करना, इन्हां दे विच जिहड़े कॉमन एलिमेंट्स ने उन्हां नूं सिर्फ एक बार लिखना है। 7 9 11 13 और 15 जो कॉमन सी उन्हां नूं एक बार लिख लिया, बाकी सारे एलिमेंट्स उवें ही लिख लिए। देन आपां A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C फाइंड करना। ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान नाल करने वाले, क्योंकि कितने एलिमेंट्स आपां नूं गिवन हुंदे हैं, यूनियन ते इंटरसेक्शन नूं भी आपां नूं ध्यान नाल देखना पैंदा। हुण इन्हां दे बिटवीन कॉमन की है, दोवां एलिमेंट्स दे बिटवीन कॉमन की अपने को उन्हां नूं लिखना है। 7 9 और 11 9 11 और 15 आही एलिमेंट्स कॉमन इन्हां दे विच। सो अपने को की आ गया, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C अपने को हाँ आ गया। हुण आपां करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे अपने को क्वेश्चन नंबर 7 है, इहदे विच भी आपां नूं 4 सेट गिवन ने A B C D एंड ये सारे सेट आपां नूं सेट बिल्डर फॉर्म दे विच गिवन ने। सो आपां पहलां इहनां दे एलीमेंट देखने ने, जदों अपने कोल एलीमेंट आ जांदे ने उदों ही आपां यूनियन ते इंटरसेक्शन फाइंड कर सकदे ना। हुण नैचुरल नंबर, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर किहड़े नंबर हुंदे ने, ਉਹ नंबर जो 1 ਤੋਂ स्टार्ट हुंदे ने अप टू इनफिनिटी तक जांदे ने। क्लियर। नेक्स्ट अपने को बी सेट दे विच की अपन गिवन है, द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर किहड़े नंबर हुंदे ने, जिहड़े 2 दे टेबल ते डिवाइड हुंदे ने। इवन नंबर जिहड़े 2 दे टेबल ते डिवाइड हुंदे ने कि 2 4 6 8 ये भी अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे है ना। तो ये नैचुरल नंबर, ये अपनी को इवन नैचुरल नंबर मीनस जिहड़े इवन नंबर ने वो नैचुरल नंबर भी होंगे। क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 वो नैचुरल नंबर दे विच प्रेजेंट हुंदे ने। सो इहदे विच किहड़े एलिमेंट्स आ गए अपनी को 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। अगला आ गया, द सेट ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर जिहड़े 2 दे टेबल ते नहीं जांदे, 1 3 5 7 ये 2 दे टेबल ते अपनी कोल नहीं जाते ते नेचुरल नंबर भी ने। क्योंकि नेचुरल नंबर किहड़े नंबर हुंदे ने, जिहड़े 1 तो स्टार्ट हुंदे ने अप टू इनफिनिटी तक जांदे ने। उनदे बिटवीन एनी नंबर 14 15 16 एक्सेट्रा सारे ही नंबर, ठीक है, वो फिर जिहड़े 1 3 5 7 ने वो नैचुरल नंबर दे विच भी आंदे ने। सो नेक्स्ट अपनी को द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। वो नंबर जिहड़े सिर्फ आपदे टेबल ते ही जाते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है एंड 7 एक प्राइम नंबर है एंड एक्सेट्रा। क्लियर। अपने को क्वेश्चन गिवन है, आपां A इंटरसेक्शन B फाइंड करना। A इंटरसेक्शन B आपां किवें फाइंड करांगे। हुण इन्हां दोवां दे बिटवीन कॉमन की है, किन्ने एलिमेंट्स कॉमन है। सो आपां इन्हां नूं एलिमेंट्स दी फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते। सो आपां इन्हां नूं सेट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखांगे। की लिखांगे, द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। देखो मैं किवें लिखी, हुण जिहड़े इवन नेचुरल नंबर ने 2 4 6 8 एक्सेट्रा एंड मतलब जिथे
4 आऊगा। हुण इत्थे 2 भी कॉमन है 4 भी कॉमन है, मीनस जिहड़े ईवन नैचुरल नंबर ने वो नैचुरल नंबर दे विच भी आंदे ने। सो इन्हां दोवां दे विच कॉमन की होणगे ईवन नैचुरल नंबर। क्लियर। हुण जिहड़े ईवन नैचुरल नंबर ने ये बी सैट है ना अपने कोल, तां आपां ए इंटरसैक्शन बी नूं बी दे इक्वल भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा तुहानूं एक बार रिपीट करदी हां की कहना। देखो इहदे विच आपां नूं 4 सैट गिवन ने ते 4 सैट है जिहड़े आपां नूं 4 सैट गिवन ने, ये आपां नूं सैट बिल्डर फॉर्म दे विच गिवन ने। हुण जदों यूनीअन ते इंटरसैक्शन फाइंड करना हुंदा आपां नूं इन्हां दे एलीमेंट्स पता होने चाहिए है। जदों आपां नूं एलीमेंट्स पता लग गए फिर ही आपां यूनीअन ते इंटरसैक्शन फाइंड कर सकते हैं। हुण ये सैट बिल्डर फॉर्म दे विच आपां नूं एग्जांपल्स गिवन सीगियां है ना। हुण जदों सैट बिल्डर फॉर्म नूं फर्स्ट स्टैप हुंदा आपां ना कि आपां उन्हां नूं रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म दे विच कन्वर्ट करिए, मीनस एलीमेंट दी फॉर्म दे विच कन्वर्ट करिए। सो आपां इन्हां नूं एलीमेंट दी फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लिया। नैचुरल नंबर किहड़े नंबर सी जो 1 तो तां स्टार्ट हुंदे ने ते इनफिनिटी तक जांदे ने, ते ईवन नंबर ईवन नैचुरल नंबर किहड़े हो गए अपने कोल 2 4 6। हुण आपां इत्थे की फाइंड करना सी, इंटरसैक्शन बी फाइंड करना सी, ए इंटरसैक्शन बी। हुण इन्हां दोवां दे बिटवीन कॉमन की है, इंटरसैक्शन का मतलब तो यही है ना कि इन्हां दोवां सैट दे विच कॉमन की है। हुण ये नंबर इनफिनिटी तक जांदे हैं, सो आपां इन्हां नूं एलीमेंट दी फॉर्म दे विच लिख ही नहीं सकदे, किन्ने ही एलीमेंट होणगे। सो आपां इन्हां नूं स्टेटमेंट दी फॉर्म दे विच लिखांगे, सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिखांगे। सो आपां की करांगे, हुण इन्हां दे विच किन्ने ही एलीमेंट्स है, आपां एक सैट बिल्डर फॉर्म बनानी सी है ना, जो ईवन नैचुरल नंबर ने। और जिवें नैचुरल नंबर दी एक टाइप ही है ना ईवन नैचुरल नंबर, सो ईवन नैचुरल नंबर ने जिहड़े 2 4 6 एक्सेट्रा वो नैचुरल नंबर दे विच भी प्रेजेंट हुंदे ने। सो आपां हुण करदे नैक्सट एग्जांपल। हुण अपनी कोल इहदा सैकेंड पार्ट है 7th क्वेश्चन दा। इत्थे आपां की करना है, ए इंटरसैक्शन सी फाइंड करना, मीनस इन्हां दोवां दे बिटवीन ही आपां वेखना कि की कॉमन आ रहा है। सो नैचुरल नंबर तुहानूं दसता 1 तो स्टार्ट हुंदे अप टू इनफिनिटी तक जांदे ने, ते ओड नैचुरल नंबर किहड़े हुंदे ने 1 3 5 जो 2 दे टेबल ते डिवाइड नहीं हुंदे। सो ए इंटरसैक्शन सी इन्हां दे विच की कॉमन आ रहा है, देखो जिहड़े ओड नैचुरल नंबर ने 1 3 5, हुण इत्थे 1 भी प्रेजेंट है 3 भी प्रेजेंट है 5 भी प्रेजेंट है, किन्ने ही नंबर प्रेजेंट होणगे। सो आपां इन्हां नूं एलीमेंट दी फॉर्म दे विच नहीं लिख सकदे, सो आपां एक सैट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट बना के लिखना है। हुण जिहड़े ओड नैचुरल नंबर ने वो इस सैट दे विच भी प्रेजेंट होणगे। सो इन्हां दोवां दे विच कॉमन की आ गया अपने कोल ओड नैचुरल नंबर। देखो द सेट ऑफ x such that x belongs x is an odd natural number। इनदे विच आपां की करना है, ए इंटरसैक्शन सी फाइंड करना सी। आपां की करांगे, आ ए ते सी दे बिटवीन रिलेशन देखना सी आपां। हुण जिहड़े बच्चे ओड नैचुरल नंबर ने ना 1 3 5 7, सो ये जिहड़े नंबर ने ये नैचुरल नंबर दे विच भी प्रेजेंट होणगे, क्योंकि नैचुरल नंबर दी गां टाइप हुंदी है ईवन ते ओड नैचुरल नंबर। सो जिहड़े ओड नैचुरल नंबर ने 1 3 5 वो इस सेट दे विच भी प्रेजेंट होणगे। सो इन्हां बिटवीन कॉमन की है, इन्हां दे बिटवीन x इज एन ओड नैचुरल नंबर, तां करके आपां ये स्टेटमेंट लिख ली। इनू एवें भी लिख सकते हैं। हुण एक आई स्टेटमेंट बन गई जमा सेम है, तां ये सी दे इक्वल भी इनू लिख सकते हैं। हुण आपां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इहदा थर्ड मतलब पार्ट। देखो ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करना, ए इंटरसेक्शन डी। हुण इन्हां बिटवीन रिलेशन वेखना ए दे ते डी दे बिटवीन रिलेशन। देखो हुण ये नैचुरल नंबर उवें 1 तो स्टार्ट हुंदे ने अप टू इनफिनिटी तक जाते हैं। एंड डी दे विच की है प्राइम नंबर। हुण प्राइम नंबर अपने कोल किहड़े ने 2 3 5 7। हुण ये इनफाइनाइट तक तुसीं एक गल ध्यान रखो, याद रखो कि जिहड़े नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं सो आपां उन्हां नूं एलीमेंट दी फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते, वधिया तरीके नाल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तां करके आपां उन्हां नूं सैट बिल्डर फॉर्म दे विच लिख रहे हैं।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ 2 3 5 7 ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਮਤਲਬ 1000 900 ਐਕਸੈਪਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2 ਵੀ ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, 3 ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 5 ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਦ ਸੈਟ ਆਫ x such that x is a prime number, x ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a intersection d is equals to d, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ d ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ b intersection c ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। b ਦੇ c ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ। b intersection c is an empty set, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। b intersection d ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ b intersection d ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, the set of x such that x is an even natural number and d ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੈ, b ਤੇ d ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ, ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 2 ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। b intersection d ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ 2 ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਬਚਿਆ c intersection d ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ c ਤੇ d ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ c ਤੇ d ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। the set of x such that x is an ਆਪਣੇ ਕੋਲ odd natural number। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, 5 7 ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਡ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5th 6th 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਨੇਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ।